Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So if y1 and y2 are two linearly independent solutions of the linear homogeneous ODE, linear homogeneous ODE of the form y double dash plus py dash plus y equal to 0, then the general solution will be y equal to c1 y1 plus c2 y2, जो कल मैंने कहा था. In such case, y1 and y2 forms a basis. In such case, y1 and y2 forms a basis. अच्छा, मैंने कल मटेरियल भेजा था, देखे हो? हाँ सर. Yes, sir. तो चैप्टर 2 का भी पूरा मटेरियल भेजा हूँ. चैप्टर 2 का भी पूरा मटेरियल भेजा हूँ, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मॉडलिंग प्रॉब्लम. मॉडलिंग का फॉर्मेटिंग भी हुआ है. फॉर्मेटिंग मतलब प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट से कैसे कन्वर्ट होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो सॉल्व कर सकते हो. तो वो अच्छी तरह से पढ़ो. You have to ask your doubts regarding the problems.
In such case, y1, y2 forms a basis. Now, if one of the solution is given, then how to find the other solution? This is very important. This method again will be applied in second semester. Given OD is y double dash plus py dash plus qy equal to 0. One of its solution, say y1 is given, then y2 will be u into y1, where u will be integration of capital U dx. Capital U is 1 by y1 square e to the power integration of minus p dx. Very simple formula. xy double dash plus 2y dash plus xy equal to 0. One of the solution is given as cos x by x. Find the other solution. Or basis of solution. Is it the differential equation is in proper order? मैं कुछ पूछ रहा हूँ. What is the form of the differential equation you have to solve? Second order, sir. Second order में पूछ Homogeneous linear. मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ. What is the proper order? Proper form क्या है? y double dash plus py dash plus qy equal to 0. Is it in the proper form? No, sir. no sir No, sir. x y double dash. पूरा टर्म को सबको. It is not in proper form. Proper form क्या होगा? Y double dash plus 2 by x by x y dash plus y equal to 0. Here p is 2 by x, q is 1. Given y1 is cos x by x. So y2 will be uy1, where u is integration of u dx. U is 1 by y1 square e to the power minus p dx. ये लिखना पड़ेगा. Now पीछे से चलते हैं. u equal to 1 by y1 square cos x by x square e to the power minus p is 2 by x dx. That is x square by cos square x
e to the power minus 2 ln x, which is x square by cos square x into 1 by x square. That is x square x. The small u is integration of u dx, that is integration of x square x dx, which is tan x. So y2 is u into y1, u is tan x, into y1 is cos x by x, which becomes sin x by x. Required general solution is y equal to c1 y1 plus c2 y2, that is c1 cos x by x plus c2 sin x by x. Also you can check also y1 and y2 are linearly independent, as y1 by y2 is cos x by x by sin x by x, that is cot x, not equal to constant. So y1 and y2 forms a basis. कहाँ समझ नहीं पा रहे हो पूछो। कहाँ समझ नहीं पा रहे हो पूछो। सर वो सेकंड वाला पॉइंट क्या है? इन केस y1 एंड y2 टर्म्स बेसिस फॉर्म से बेसिस, लिनियर सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन को बेसिस बोलते हैं। Excuse me, sir. So first sentence में linear के बाद क्या लिखा है? लिनियर होमोजेनियस। Okay, sir. Thank you.
सर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 1/y1 का स्क्वायर e पे पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx इसका जनरल फॉर्म हुआ। ओके सर वेयर के नीचे क्या लिखा है? क्या है? वेयर के नीचे वेयर के नीचे लिखा हुआ है स्मॉल u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल U dx। ठीक है सर। ये y2 इज इक्वल्स टू स्मॉल u y1 लिखा था ना सर पिछले स्मॉल स्लाइड u में? अननोन है, स्मॉल u अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। ओके सर। वो डेरिवेशन भी पेज 51 52 पेज में है, देख सकते हो। उसका डेरिवेशन 51 52 पेज में है। ओके सर। सर नेक्स्ट पे सर 1 मिनट लास्ट पेज में जाइएगा। तो सर वो ऊपर वहाँ क्या लिखा है वो राइट साइड का सेकंड लाइन में x² बाई cos² x। खुद देखो, खुद मेथड जो वैल्यू है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता है खुद बनाओ।
y1 का वैल्यू cos x by x है, y1 स्क्वायर क्या होगा खुद बना देखो, कुछ सुन रहे हो या नहीं? सर आपने बेसिस क्या बताया था, बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ओके सर। सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन को बेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, verify that the given functions are linearly independent and form a basis of solution solutions of the given OD and solve the IVP। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन इज y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 2, y dash 0 equal to -1, solutions are cos 3x sin 3x। So how to attempt those question? y1 is given as cos 3x, y2 is given as sin 3x। So now y1 by y2 क्या होता है? cot 3x, that is not a constant, so y1 and y2 are linearly independent। That is the first step। सेकेंड स्टेप, ये सॉल्यूशन होता है या नहीं। गिवन OD इज y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0 फॉर y1 इक्वल टू cos 3x। व्हाट इज द LHS? ये सॉल्यूशन होगा या नहीं ना। cos 3x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, प्लस 9 cos 3x। cos 3x को 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? -9 cos 3x। Am I Yes, right? sir. Equal to 0. So y1 is a solution। y1 is a solution। y2 के लिए, for y2 equal to sin 3x, LHS sin 3x का डबल डैश
प्लस 9 sin 3x, ये होता है माइनस 9 sin 3x प्लस 9 sin 3x equal to 0. y2 is also a solution. That means y1 and y2 are two solutions, are linearly independent. तो मैंने लिखा था y1 and y2 forms a basis. The general solution is y equal to c1 y1 plus c2 y2. That means c1 cos 3x plus c2 sin 3x. Next, y जब हुआ cos 3 c1 cos 3x plus c2 sin 3x, तो y1 y dash क्या होगा? -3c1 sin 3x plus 3c2 cos 3x. Given initial conditions are y0 equal to 2, y0 2 होने से क्या मिलेगा मुझे? Who can say? c1 plus 0 equal to 2. Am I right? Yes, sir. y dash 0 equal to -1. क्या मिलेगा? 0 plus 3c2 equal to -1. The c2 is -1/3. The required particular solution is y equal to 2 cos 3x -1/3 sin 3x. स्टेटमेंट क्या है, कैसे बनाते हैं? स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे बनाते हैं? पहले दिखाया सेकेंड ऑर्डर को रिड्यूस करके फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर दिखाया एक सॉल्यूशन दिया गया तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अभी दिखाया दो फंक्शन दिया गया है, whether those are two solutions or not, whether they forms a basis or not, then the general solution and the particular solution. So next page. The last page दिखाई देता है। Yes, बता।
Sir, next page. हो गया? तो वापस रिज्वाइन कर लीजिए, लिख लिया सर। देख लो, पूछो क्या डाउट है। सर जहां पर भी कोई भी फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसको बेसिस लिख के छोड़ देंगे से होगा ना उसकी जगह। y1 y2 linearly independent है तो they forms a basis, but you have to know whether they both are solutions of the given differential equation or not. If I will take e to the power x, e to the power 2x, e to the power x, e to the power 2x, ये दोनों linearly independent है, ये क्या बेसिस फॉर्म करेगा? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0 का ये बेसिस फॉर्म करेगा क्या? नहीं सर। पहले वो सोल्यूशन होना चाहिए, नेक्स्ट वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। First, both are to be the solution of the given differential equation. Then they are to be linearly independent. After that, you can say both are forms a basis. हो गया सबका? यस सर। यस सर। एग्जिट करो, एग्जिट करके रिजाइन करो।
शंभुदत्त चटर्जी, हाँ सर। क्या था तेरा क्वेश्चन? सर देयर वाज सर क्वेश्चन ये था कि फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन था जो टच करता है y इज इक्वल टू 2 को 0,2 में, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। 0,2 को टच कर रहा है हाँ सर। तो सेंटर कहाँ रहेगा? सर उसको ऊपर सेंटर इज 0C। हाँ 0। इससे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो C सेंटर है 0C। रेडियस क्या हो सकता है? C माइनस 2। C-2। इक्वेशन क्या होगा? x² प्लस y माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू C-2 होल स्क्वायर। Differentiate both sides with respect to x. What I will get? So 2x plus 2x is 2x equal plus 2 into y minus c into y1 equal to 0. तो x equal to minus of y minus c y1। तो y minus c का वैल्यू क्या हुआ? माइनस एक्स बाई y1। c का वैल्यू क्या होगा? y प्लस एक्स बाई y1। तो पुटिंग इन equation 1, x square plus minus x by y1 square, c is y plus x by y1 minus 2 whole square। सिंप्लीफाई कर दो, हो गया। y1 मतलब dy by dx, y1 मतलब dy by dx। हाँ सर। तो फिर ये होल स्क्वायर हटा दो, जो कुछ कैंसिल होगा कुछ रहेगा, दैट इज द थिंग। सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस एक्स बाई y1 स्क्वायर जो मिलेगा ये a प्लस b माइनस सर वो c का निकाल होल लेंगे स्क्वायर। सर। हाँ, सर वो निकाल लेंगे। ठीक है सर। the next is solution of linear homogeneous OD, with constant coefficient, What is the form of such equation? पढ़ाई सर करो, वो क्या है बोलो? y double dash plus ay dash plus by is equal to 0. The given OD is of the form
is of the form y double dash plus ay dash plus by equal to 0. How to solve? How to solve? Let the trial solution is y equal to e to the power mx. So y dash will be what? M e to the power mx. Y double dash will be m square e to the power mx. This is equation 1. Putting in equation 1, what I will get? M square e to the power mx plus am e to the power mx plus b e to the power mx equal to 0. That is m square plus am plus b whole into e to the power mx equal to 0. As e to the power mx is not equal to 0. Why it is not equal to 0? e to the power mx 0 क्यों नहीं होगा? लास्ट क्लास में कहा था कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कांस्टेंट मिल रहा है तो दैट इज मीनिंगलेस. As e to the power mx is not equal to 0, so m square plus am plus b equal to 0, which is called as characteristic equation. Solving the characteristic equation, we will get two values of m. Such as m1 and m2. Depending upon the nature of the characteristic root, the solution will be case 1 when m1 and m2 are real and distinct. What do you mean by distinct? M1 is not equal to M2. M1 is not equal to M2. The solution will be y equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. When m1 and m2 are real and equal, that means m1 equal to m2. The solution will be y equal to c1 plus c2x e to the power m1x. Third case, when m1 and m2 are complex conjugate to each other, of the form
M1 equal to alpha plus I beta, M2 equal to alpha minus I beta. Solution will be e to the power alpha x C1 cos beta x plus C2 sin beta x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. थ्योरी लिख लो, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करूंगा. Respond your roll number 426, 427, Present, sir. 428, Sir, 426 present. My mic was not working. 428, 429, Present, sir. 430, Present, sir. 431, Present, sir. 432, Present, sir. 433, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 435, 436, Present, sir. 437, Present, sir. 438. Already we are running late, I think. So just 1 minute, I will start. Okay, I think we have finished the complex reactions. हम लोग शायद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पूरा खत्म कर दिए थे ना, कुछ था बाकी? Kinetics 5 था आपका लास्ट क्लास. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग. कुछ क्वेश्चन पे प्रॉब्लम था क्या? क्वेश्चन देने के लिए मैं भूल जाता हूँ. माय वॉइस इज क्लियर एंड ऑडिबल ना? Yes, sir. मैं एवरी डे सोचता हूँ कि रात को आपको भेज दूंगा वो जो क्वेश्चन सेट, तो बार बार भूल जाता हूँ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. अरे आई एम इनसाइड क्लास. ओके, क्या हुआ फिर? देन आप उसको और एक बार लिखो व्हाट्सएप इसको को, ठीक है? ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में मैं आपको बोला था कि वी कैन गो थ्रू. दीज आर द फैक्टर्स एक्चुअली: नेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट. नेचर के बारे में मैं बोलना आपको शुरू किया था एंड आई वाज टॉकिंग विथ यू दैट अच्छा, आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस वन ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड. नेचर वाला और एक बार बोल देने से सर सुविधा होता. हाँ, नेचर में एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. ओनली थिंग जो आपको समझना है कि नेचर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है, मीन्स एस्पेक्ट है, एंड इंडिविजुअल रिएक्शंस हैज टू बी एनालाइज्ड एज फार एज इफेक्ट ऑफ नेचर इज कंसर्न. आपको अगर कोई रिएक्शन में
आपको रेट के ऊपर नेचर का इन्फ्लुएंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोलेगा तो इंडिविजुअल रिएक्शन हैज टू बी एनालाइज्ड, ओके, बिकॉज नेचर इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आपका अगर एलिमेंटल रिएक्शन होगा तो उसमें साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी, नेगेटिविटी, ये सब आएगा। अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा तो उसमें आपका बॉन्ड एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, ये सब आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लैटिस एनर्जी, ये भी आएगा अगर मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो नेचर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वी कैनॉट राइट ए जनरलाइज स्टेटमेंट लाइक टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, इस तरह से कोई एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आप ड्रॉ कर नहीं सकते नेचर में, ओके। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग विथ यू लास्ट टाइम। एंड एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, यू नो दैट मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, and the reducing nature of metal is attributed to their low ionization energy. That means metal से आप easily electron remove कर सकते हो. That is why metals are considered to be good reducing agent. So suppose you are carrying out a reaction by using lithium as a reducing agent and sodium as a reducing agent. Same reaction, only I am changing the reducing agent, okay. So somebody asks you that you explain me what will be the influence of the nature on this particular reduction reaction. तो कौन सा केस में रिएक्शन इजी होगा, फास्टर होगा, कौन सा केस में रिएक्शन थोड़ा व्हाट इज से लेस रेट में प्रोसीड करेगा। तो आपको क्या देखना है कि व्हिच वन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर लिथियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम के केस में आपका रिएक्शन फास्टर होगा। अगर सोडियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सोडियम के केस में होगा। तो हम क्या देखे थे कि लिथियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बट आप सोच लो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लिथियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन सोडियम। मैं आपको बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सब आपको पता है, ओनली आई एम जस्ट कंसोलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सोडियम से एज फार एज साइज इज कंसर्न, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न। तो आप देख लो लिथियम का साइज छोटा है एंड लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन सोडियम, बट स्टिल इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मींस स्टिल इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, इज नॉट इट? यस Yes, sir. तो ये चीज को कैसे एक्सप्लेन करें? तो थिंग्स बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ना। ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट कंट्रोलिंग, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ और कुछ भी है जो कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आपको बोल रहा था कि whenever you are carrying out the reaction, you are carrying out in the solution phase, and in the solution phase बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी का बात में कर रहा था। जब सॉल्वेशन होता है, solvent molecules surround the sodium ion and solvent molecules surround the lithium ion, आप देखोगे lithium ion is extensively solvated, ज्यादा सॉल्वेशन होता है लिथियम आयन का, बिकॉज F is equal to Q1 Q2 by R square। R अगर आपका छोटा स्मॉल होगा so definitely force will be more, is not it? अरे समझ में आ रहा है? तो R अगर स्मॉल हो जाएगा तो डेफिनेटली Yes, force sir. will be more। तो लिथियम आयन इज एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। आपको याद भी होगा, आपने प्लस 2 में ये टाइप को क्वेश्चन का आंसर दिया होगा कि लिथियम प्लस जो एक्वियस आयन है उसका साइज इज मोर देन सोडियम प्लस एक्वियस, याद है? हाइड्रेटेड साइज अगर आप बोलोगे ना, लिथियम का साइज ज्यादा है देन सोडियम। लिथियम का जो इफेक्टिव साइज है अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स दैट सराउंड लिथियम, दैट साइज इज मोर देन सोडियम आयन। अगर आप आयोनिक रेडियस देखोगे तो डेफिनेटली लिथियम का आयोनिक रेडियस इज लेस देन सोडियम, बट हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियस अगर आप देखोगे, मींस सॉल्वेंट के साथ अगर देखोगे, तो लिथियम का जो साइज है वो सोडियम से ज्यादा है। मींस मेरा कहने का ये मतलब है बेसिकली कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है लिथियम में, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इफेक्ट है उसको कंप्लीटली आउटवेट करता है, मींस कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देता है। समझ में आ रहा है? मींस इतना ज्यादा एनर्जी यहाँ पे निकलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो इफेक्ट है उसको कंप्लीटली आउटवेट करता है
hydration energy, and lithium easily loses electron in solution. Try to understand. So ionization energy actually describes the tendency to lose electron for an isolated gaseous atom, not in solution. तो solution में जो donating tendency है, rather we describe that as oxidation potential. Am I correct? अरे समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन फेज। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता है कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बट स्टिल देन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने के पीछे एक्चुअली रीजन है इसका हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पहले मेटल लैटिस को आपको ब्रेक करना पड़ता है, तो लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व होता है। राइट साइड में मैं लिखा हूं, आप देख सकते हो। उसके बाद और एक एनर्जी एक्चुअली मैं छोड़ दिया हूं, मेटल पहले लैटिस को ब्रेक करेगा, उसके बाद उसको गैसियस स्टेट में लोगे, इज नॉट इट? उसके बाद गैसियस स्टेट में लोगे मींस व्हिच एनर्जी विल कम इनटू प्ले? समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे मींस आयोनाइज करोगे, तो उसमें आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद उसको सॉल्वेशन करोगे, वहां पे आएगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब एनर्जी कंबाइंडली गिव्स यू द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग एजेंट एबिलिटी। ये सबको डिस्क्राइब करने के लिए इतना सारा एनर्जी आपको चाहिए, इतना सारा एनर्जी के ऊपर आपको आइडिया चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सप्लेन दैट लिथियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम। इज नॉट इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? अरे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। तो कोई भी एक रिएक्शन अगर मुझे देख के बोलना है कि ये फास्ट होगा या स्लो होगा, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एज फार एज नेचर इज कंसर्न। बिकॉज नेचर के लिए आपको सपोज मैं बोलता हूँ कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स यू अमोनिया, तो आपको बॉन्ड एनर्जी सब समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, उसका भी बॉन्ड एनर्जी आपको समझना है। तो इतना इजी नहीं है whenever you are going through reactions and trying to explain the effect of nature। तो नेचर के लिए कोई स्टैंडर्ड लाइंस तो हम नहीं लिख सकते, बट कुछ कुछ कंक्लूजन भी आप कर सकते हो, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस। मैं आपको बोलता हूँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, अच्छा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो नेचर के बारे में नेचर के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें कुछ जनरलाइज कंक्लूजन आप लिख भी सकते हो, जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर फर्स्ट रिएक्शंस, FAST। फर्स्ट माने क्विक है, फर्स्ट रिएक्शंस। समझ में आया? तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन HCl प्लस NaOH, अब देखोगे क्विक रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो रिएक्शंस। अब देखोगे, आपको याद होगा जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा, have you marked the basic difference between organic reactions and the inorganic ionic reactions which you have read in plus 2? Acid base neutralization is actually ionic reaction. ये molecular reaction का बात कर रहा हूं। तो क्या बेसिक डिफरेंस है? So organic reactions are slow comparatively. हाँ, ये तो ठीक है, आप म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ आपको। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्लो है, बिकॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर एक्चुअली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। एंड द पॉइंट व्हिच आई वाज इंटेंट टू फोकस वाज, आप देखोगे यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस you are writing some conditions on the arrow mark, means some elevated temperature, pressure, some catalyst,
आप देखोगे ये सब चीज ज्यादातर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में, आयोनिक रिएक्शंस में हम मेंशन नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मोस्टली रिक्वायर्ड सम एलिवेटेड कंडीशन so that the reaction will proceed at an appreciable rate. So molecular reactions are usually slow reactions. रीजन भी है, रीजन बेसिकली यही है कि सपोज आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक मॉलिक्यूलर का एग्जांपल देता हूं, एक आयोनिक का एग्जांपल देता हूं। सपोज आयोनिक में एक एग्जांपल जो आपने प्लस 2 में किया है उस टाइप का एग्जांपल एक लेते हैं। यू हैव टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन आपने टेस्ट किया होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस लैबोरेटरी में हम लोग करते हैं ना, क्लोराइड आयन का टेस्ट। तो क्लोराइड आयन को टेस्ट करने के लिए सॉल्यूशन में सपोज आपका क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन तो कहां पे आएगा, तो यू हैव टू टेक सम क्लोराइड सॉल्ट एंड डिसॉल्व इन वाटर। सपोज वी आर टेकिंग सोडियम क्लोराइड मींस Na+ प्लस Cl-। सॉल्यूशन में अगर NaCl को डाल के आप वाटर में उसको ये करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो what will happen? You are going to get Na+ and Cl- ions. Am I correct? अरे सोडियम क्लोराइड, अच्छा ये जो सोडियम क्लोराइड जो ब्रेक होके Na+ एंड Cl- आयन होता है, सोडियम क्लोराइड का तो कुछ लैटिस एनर्जी होगा। वो लैटिस एनर्जी को हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं? ड्यू टू सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी इज एक्चुअली ब्रेकिंग द लैटिस एंड वी आर गेटिंग Na+ एंड Cl- आयंस। ओके, सो क्लोराइड आयन को जो टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जब हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन होता है। सो व्हाट हैपेंस, दिस AgCl इज फॉर्म्ड एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये इसका टेस्ट होता है, लाइक उसके बाद सोडियम नाइट्रेट होता है, बट सोडियम नाइट्रेट remains as Na+ and NO3- because that is a strong localite, but silver chloride is sparingly soluble, so that is why that is formed as a white precipitate. So क्लोराइड आयन का जो टेस्ट है, हम लोग जो क्वालिटेटिव टेस्ट लेबोरेटरी में करते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन लेके यू हैव टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एंड वंस यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इमीडिएटली बनता है। 1 ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट गिव्स यू द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बट ये रिएक्शन फास्ट होता है। बट अब देख लो इसमें एडवांटेज आपको क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है दैट इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप, देन मेकिंग, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो ब्रेकिंग के लिए यू नीड सम एनर्जी। तो आयोनिक रिएक्शन में बेनिफिट ये होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, सॉल्वेंट एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बिफोर रिएक्शन आपका बॉन्ड ब्रेकिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इमीडिएटली when you add silver nitrate solution, ultimately actually we are adding silver ions, and oppositely charged ions have very strong affinity for each other, so Ag+ Cl- reacts to give you AgCl instantly. But at the same time, if you go for a molecular reaction, let's say N2 plus H2, that gives you ammonia. अब देखो इसमें आपको नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। सो ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक पहले होगा, देन ओनली नाइट्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए आपको बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, नॉर्मली दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द collision or translational energy. The molecules are actually having translational motion, they have the translational energy, they collide with each other. During collision, that translational energy is utilized for bond rupture. तो यहाँ पे क्या है ना, आपको पहले बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कॉलिजन से मिलता है, बट यहाँ पे क्या है ना, ऑलरेडी सॉल्वेंट टेक्स केयर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, सो ओनली व्हेन यू ऐड रिएक्टेंट्स विथ ईच अदर, directly the oppositely charged ions have very strong affinity for each other and instantly they combine to give you the product. But यहाँ पे ये नहीं हो सकता है molecular reactions में, because molecules में आपको पहले तो bond break करना पड़ेगा. Do you understand the difference between ionic reaction and a molecular reaction? Yes sir. तो नॉर्मली आयोनिक रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, क्विक होता है, एंड मोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है. बट ये जनरलाइज स्टेटमेंट भी नहीं है, ये भी स्पेसिफिक हो जाता है कि कौन सा केस में क्या हो रहा है. तो नेचर के बारे में मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा. मैं बार बार आपको बोलता हूं, कोई अगर बोलेगा तो यू जस्ट आंसर.
that nature is very complicated. Lot of things are involved. Bond energy, solvation energy, ionization energy, affinity, negativity, everything. बहुत कुछ चीजें वहां पे इन्वॉल्व होता है. लैटिस एनर्जी, जो मैं बोला आपको, सब्लिमेशन एनर्जी, कौन सा फेज में आपका रिएक्शन हो रहा है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है. तो नेचर को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. कोई स्पेसिफिक रिएक्शन मुझे बोलेगा कि नहीं मेरा रिएक्शन हावर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है, तो हावर्स प्रोसेस में क्या क्या है मैं डिस्कशन करूंगा. ओके, तो स्पेसिफिक रिएक्शन मुझे दे दिया जाएगा, आई विल डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन इट. जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल आपको बोला था, lithium is used as reducing agent, sodium is used as reducing agent, which is in which case the reaction will be faster. So individually you have to discuss. Okay. अच्छा, what are the other factors? The second factor क्या था? Concentration, is not it? Second factor क्या था? Concentration ना? Nature के बाद क्या था? Yes, sir. अच्छा, concentration. Should I discuss concentration? Now already I have discussed. Concentration में discussion कर चुका हूं, क्योंकि whenever you have gone through rate law, आप याद करो, हम जब rate law पढ़े थे, concentration effect, okay, concentration. rate law का मतलब क्या है? rate and concentration of reactants ना? Yes, sir. है कि नहीं? इसमें कहां पे रेस्ट टू द पावर 1 होगा, कहां पे हाफ होगा, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, जो बहुत सारा चीज हो सकता है. ओके, बट रेट तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करता है ना. सो हाउ रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? रेट लॉ. इज नॉट इट? यस. हाँ सर. तो Yes, sir. हम तो लास्ट 4-5 क्लासेस से यही काम कर रहे हैं. हाउ टू राइट द रेट लॉ. सिंपल रिएक्शन में रेट लॉ कैसे लिखा जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ कैसे लिखा जाए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे बनाया जाए, ये सब तो हमने डिस्कशन किया. तो रिएक्शन के हिसाब से यू कैन डेवलप द रेट लॉ सो दैट यू कैन गेट द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑन द रेट. ठीक है? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. तो कंसंट्रेशन इफेक्ट आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. कोई अगर बोलेगा हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट, यू हैव टू टेल दैट विल बी that can be obtained from the rate law. If you are able to write rate law, you can tell the effect of concentration on rate. ठीक है? अच्छा, कंसंट्रेशन के बाद टेम्परेचर के बाद एक प्रेशर में लिखा था. एक्चुअली शुड यू राइट प्रेशर? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रेशर के बारे में हम कुछ सेपरेटली डिस्कशन करेंगे. जरूरी नहीं है. मैं टेम्परेचर के साथ प्रेशर लिखा था इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए कि प्रेशर क्या रिक्वायर्ड है, नहीं है. बिकॉज प्रेशर एंड कंसंट्रेशन दे आर रिलेटेड. P is equal to CRT ना? Yes, sir. तो आप अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर लिखोगे, क्योंकि आपका तो लॉ ऑफ मास एक्शन कभी नहीं बोलता है कंसंट्रेशन. लॉ ऑफ मास एक्शन तो बोलता है एक्टिविटी या एक्टिव मास. इज नॉट इट? अगर सॉल्यूशन होगा तो मोलर कंसंट्रेशन होगा, अगर गैस होगा तो पार्शियल प्रेशर होगा या प्रेशर होगा. इज नॉट इट? यस. Yes, sir. कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ये टुगेदर में लिख देता हूं, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रेशर इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट लॉ. तो इफ यू आर एबल टू राइट रेट लॉ, यू कैन टेल द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर. करेक्ट? चले आगे. Yes, sir. नेक्स्ट आप देख लो कौन सा फैक्टर और बचा. 5 आपका नेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. इसको ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट 2-3 क्लासेस विल बी एट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. सो टेम्परेचर इफेक्ट. अच्छा,
जस्ट टेल मी, हम सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है. यस, इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स ए हाइक इन द रेट. करेक्ट? So Yes, sir. only for Yes, sir. endothermic. Yes, sir. एंडोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो लेट मी राइट दैट. There are two types of reactions. One is endothermic, another is exothermic. So you are saying that टेम्परेचर बढ़ने से आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन रेट बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक का नहीं बढ़ेगा. यस, So नहीं बढ़ना चाहिए. माने कम हो जाएगा. Yes sir. अच्छा, सर कोई एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फिर भी कुछ चाहिए होता है एक्सोथर्मिक में भी. नहीं नहीं, इज देयर एनी डिफरेंट ओपिनियन और एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग? लेट मी सी दैट. थोड़ा हैंड्स देखते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि ये करेक्ट है, या कोई डिफरेंट ओपिनियन होगा तो आप हाथ उठाओ. एंडोथर्मिक में बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में कम होगा, ये मैं लिखा हूं. बट ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस और सम ऑफ यू हैव डिफरेंट ओपिनियन? किसी का डिफरेंट ओपिनियन नहीं है? ओके. अगर किसी का डिफरेंट ओपिनियन नहीं है तो प्रॉब्लम है. सर. हाँ बोलो. सर वैसे तो मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन को जलाते तो उसमें हीट रिलीज तो होता है, तो सर वो भी तो हो जाएगा इंडो एक्सोथर्मिक. अच्छा सुनो, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. आपके माइंड में जो है, आप थोड़ा उसको अगर एनालाइज करोगे तो यू कैन अराइव एट कंक्लूजन. समबडी वाज टॉकिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. आई एम that is something you are looking at a correct approach, that activation energy is very very important. Anyway, why wrong things move in mind मैं भी जानता हूँ. 90% 95% स्टूडेंट्स का ही रॉन्ग आइडिया होता है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर का पॉजिटिव इफेक्ट होता है एंड एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है. मींस टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रेट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक का कम हो जाता है. बट फैक्ट इज दैट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी बढ़ता है, एक्सोथर्मिक भी बढ़ता है. ये करेक्ट है, ये गलत है. 100% करेक्ट ये है कि दोनों एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में आपका टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है. ओके, थोड़ा इसको क्वालिटेटिवली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. जो आपने प्लस 2 में पढ़ा है, डिटेल तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ चीज बोलूंगा आपको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी बोलूंगा, बट जितना आपने प्लस 2 में पढ़ा है उसी को थोड़ा यूज करते हैं. रिएक्शन प्रोग्रेस आई एम टेकिंग इन द एक्स एक्सिस एंड हियर आई एम टेकिंग एनर्जी एंड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल. आपको पता होगा कि एनर्जी प्रोफाइल जब हम करते हैं तो इस टाइप का एक कर्व आपने देखा होगा, देखा कि नहीं? यस Yes sir देखा. Yes, sir. अच्छा, ये Sir. क्या है? व्हाट इज दिस वन? दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इज नॉट इट? यस. ये आपका Yes, sir. थ्रेशोल्ड एनर्जी है. इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, याद है? तो यस सर. Yes sir. so important point is that this energy, what is this energy? एक्टिवेशन एनर्जी. Activation energy. Activation and Exactly, this is very very important. इसके बारे में बहुत सारा चीज हम बोलेंगे यहाँ पे. This is activation energy, means this is the extra energy required to convert reactant into product. Actually क्या होता है ना, सभी रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर होता है. वो एनर्जी बैरियर को आपको क्रॉस करना पड़ता है. अगर मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जाना है तो डेफिनेटली इट हैज टू गो थ्रू द एनर्जी बैरियर. डेफिनेटली एनर्जी बैरियर इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड एनर्जी. आपको तो बॉन्ड एनर्जी रीच करना है, नहीं तो बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे? तो एक्टिवेशन जो है
वो जरूरी होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स का कुछ एनर्जी ओन होता है बाय वर्च्यू ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। आपको पता है थर्मोडायनामिक्स में बोला था इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम का होता है, बट इंटरनल एनर्जी में क्या होता है ना, कुछ मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, क्योंकि देयर इज ए मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी सिस्टम में आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मींस सम मॉलिक्यूल्स विल हैव low energy, some molecules will have high energy, but maximum fraction of molecules correspond to that most probable value of energy, most probable velocity से most probable energy होता है। कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। ओके, अच्छा सर आप रिपीट कीजिए ना, आप जो लास्ट बोले ये डायग्राम ड्रॉ करने के, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ मैक्सवेलियन यस, अभी जो आप बोले सर, ये जो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी सिस्टम आप ले लो उसमें एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपका एनर्जी। आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, जीरो एनर्जी में कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं होता है, सो द कर्व डज नॉट टच टू द जीरो पॉइंट। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल से आता है। दैट मीन्स आप देख लो, लो एनर्जी में कम मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी में भी कम मॉलिक्यूल है, बट ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस दिस एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। आपने प्लस टू में गैसियस स्टेट में नहीं पढ़ा था? सर ये वाला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वो वाला लॉ से आता है क्या, वो जो बीच में था हम लोग का प्लस टू में थोड़ा सा प्लस टू में गैसियस स्टेट में था, प्लस टू में आपका गैसियस स्टेट में नहीं था, वो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली ये हाँ, मैक्सवेल का नाम ज्यादा पॉपुलर है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आया। प्लस टू में यहाँ पे हम वेलोसिटी लेते हैं, बट कैनॉट आई राइट वेलोसिटी एंड एनर्जी बिकॉज हम ट्रांसलेशनल एनर्जी का बात करते हैं, तो E इज इक्वल टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी में ले सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, अगर वेलोसिटी होता तो इस वेलोसिटी को क्या बोलते थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MPV। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो मैंने 90% या 95% फ्रैक्शन जो होता है, मैंने मेजॉरिटी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस दिस एनर्जी। वेरी लो में कम मॉलिक्यूल आपका रहेगा, वेरी हाई में भी कम मॉलिक्यूल रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ना, ये समवेयर हियर आता है, लेट्स से एट दिस पॉइंट। दैट मींस these are the molecules which can have threshold energy and normal condition. Are you getting my point? When you activate, more molecules will be able to cross over the hurdle. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. हम डिस्कशन उसको एकदम क्वालिटेटिवली भी कर रहे हैं, अभी क्वांटिटेटिवली भी करेंगे। आई विल डेवलप द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि प्लस टू में आपका नहीं था। ओके, सो ओरिड होने की कुछ जरूरत नहीं है, सब आइडिया करो ओनली कि आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम में होता है। कोई भी सिस्टम हो, सभी सिस्टम के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा पार्टिकल है, सब पार्टिकल का एनर्जी का सेम होगा? इज इट पॉसिबल? तो कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, बट ओवरऑल आप देखोगे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बात जब हम करते हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी का अप्रोच है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो maximum fraction of molecules, let's say 90%, will have a particular energy that is known as most probable energy. Okay, anyway, तो कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, ये टेम्परेचर चेंज होने से ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, याद है? तो हाँ सर। अब जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, आपको पता है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं? तो आपका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्लैट हो जाएगा, है कि नहीं? सपोज दिस इज T2 एंड दिस इज योर, थोड़ा आइडिया करना जरूरी है, बना तो देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 ग्रेटर देन T1। अब देखो, सपोज ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अभी आप देखो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। तो आपका रेट बढ़ेगा, क्योंकि वही मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट देंगे ना, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है ना। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द थियोरेटिकल बैकग्राउंड। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डल।
आप सोच लो एक रनिंग रेस, हॉडल्स रेस हो रहा है, ठीक है, आपका जो स्प्रिंटर जो दौड़ रहा है वहां पे, उसको आप चाहते हो कि उसका जो टाइम है, लैप टाइम है, उसको थोड़ा कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? तो यू कैन एनर्जाइज द स्प्रिंटर बाय गिविंग सम एनर्जी ड्रिंक। आजकल तो स्टेरॉइड दे देते हैं, डोपिंग टेस्ट में अगर पकड़ा जाएगा तो मेडल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ब्लड ट्रांसफर भी होता है। I'm not talking of the means which are not allowed. I'm talking of the means which are allowed actually. तो वो जो आपका मैंने स्टेरॉइड हुआ या जो बैंड ड्रग्स हुआ वो तो छोड़ दीजिए, बट नॉर्मली हम लोग जो खेलने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो ग्लूकोज का ड्रिंक्स लेते हैं, तो दैट प्रोवाइड्स सम एक्स्ट्रा एनर्जी, इज नॉट इट? Yes, sir. So that is one way of increasing the efficiency or decreasing the time, running time, is not it? So same चीज आप अगर आपके पास 1 मोल molecules है, बट उसमें से only let's say 0.001% molecules are capable of having that threshold energy. तो आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लोगे तो वहां पे और कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा जो कि हर्डल्स को क्रॉस कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, मींस और कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो कि प्रोडक्ट आपको दे सकता है। दैट इज व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। ओके, सो ये तो क्वालिटेटिव, सिंपली क्वालिटेटिव हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल। अच्छा, कैन यू टेल मी दिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? फर्स्ट को ये कौन सा एनर्जी प्रोफाइल है? दिस इज एनर्जी प्रोफाइल फॉर व्हाट? प्रोफाइल फॉर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? अरे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है या ज्यादा है? यहाँ पे एक्सोथर्मिक कम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नेगेटिव होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। सो उस एनर्जी को भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये आपका प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो ये जो डिफरेंस हुआ यहाँ पे डेल्टा एच, ये नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, so this is the energy profile for exothermic reaction. You have to understood these energy profile diagrams are widely used in chemical kinetics. Kinetics में बार-बार हम यूज करेंगे बाद में, so you should understand that. Anyway, the next one, अगर एंडोथर्मिक होगा तो कैसे होगा? डेफिनेटली ये प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा, सही है? यस यस हाँ सर। सेम चीज है। तो ये इसका एनर्जी है, ये इसका एनर्जी है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच हो गया ये आपका पॉजिटिव एंडोथर्मिक। Positive. बट सर ये वाला हम लोग को रेजोनेंस के टाइम समझाया था, वो जो बॉन्ड ऑर्गेनिक में रेजोनेंस होता है ना, सॉरी क्या उसको बोलते थे, उसके टाइम समझाया था बेंजीन वाला। रेजोनेंस में एक्चुअली हम लोग एनर्जी, आपका एनर्जी जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है उसका एनर्जी से आपका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसका एनर्जी कम होता है, इसलिए आप उसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, तो ये आप समझ रहे हो ना, ये किसका होगा? एंडोथर्मिक। इज इट करेक्ट? दिस एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब ना, रिएक्टेंट इतना एनर्जी लेने से यहां पे जा रहा है। बट यू सी यहां पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर्ड होगा कि नहीं? फेवर होगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अभी? Yes, sir. तो रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, एक्सो में भी चाहिए एंडो में भी चाहिए, एक्टिवेशन तो दोनों साइड में चाहिए। एंड टेम्परेचर बढ़ाने से मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डल। मैं आपको और एक आइडिया देता हूं। आपको पता है कैटलिस्ट कैसे काम करता है? कैटलिस्ट का काम क्या है? वो भी रेट बढ़ाता है। डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। दैट मींस आप अगर वो स्प्रिंटर को हेल्प करना चाहते हो तो देयर आर टू वेज। आइदर यू गिव हिम और हर सम एनर्जी ड्रिंक, or you decrease the height of the hurdles.
या कुछ हॉर्डल्स को हटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आप सर। अगर लैप टाइम को कम करना चाहते हो कोई स्प्रिंटर के लिए हॉर्डल्स रेस में, तो दो तरीका है। आप हॉर्डल्स का हाइट को भी कम कर सकते हो, या कुछ हॉर्डल्स को हटा दे सकते हो, या स्प्रिंटर को आप एनर्जाइज करो। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ना, वो मॉलिक्यूल को एनर्जाइज करता है, मीन स्प्रिंटर को एनर्जाइज करता है। कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है ना, कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन इन सम अल्टरनेट पाथ। कैटलिस्ट क्या करता है ना, रिएक्शन को दूसरा पाथ में ड्राइव करता है, जो उसका यूजुअल पाथ है वो पाथ से हटा के कोई दूसरा पाथ में लेके जाता है, सो दैट वो जो दूसरा पाथ वो अडॉप्ट करता है, वहां पे हर्डल का जो हाइट है या एनर्जी बैरियर का जो हाइट है वो कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। इस तरह से हम लोग उसको दिखा सकते हैं। इफ यू वांट टू शो दैट, वी कैन शो इन दिस वे। दिस इज कैटलिस्ट। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया आपका। आप बोलोगे सर ये एक हॉम्प की तरह क्यों किए, सोच रहे हो क्या? ट्रांजिशन स्टेट। एग्जैक्टली, दैट इज टू स्टेप रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, ये जो विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन था वो वन स्टेप रिएक्शन था, ये टू स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टेंट से शुरू हुआ, यहां तक आया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो छोटा माने थोड़ा लो एनर्जी में है, ये एक्चुअली इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा है? सो रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट वन स्टेप, फ्रॉम इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सो दिस इज ए माने टू स्टेप रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल। टू स्टेप रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल हम दिखाते हैं ना, वो इस तरह से दिखाते हैं। ओके, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट, दिस इज स्टेप 1, एंड इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट, दिस इज स्टेप 2। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो आप देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैटलिस्ट इन्वॉल्व जब मैं कर दिया तो रिएक्शन दूसरा पाथ में चला गया। जो पहले कंसर्टेड था, एक स्टेप में होता था, अभी 2 स्टेप में हो रहा है। एंड आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया कि नहीं? इतना रिडक्शन हुआ कि नहीं एक्टिवेशन एनर्जी में? सर एक बात था सर, कैटलिस्ट देने से क्या 2 स्टेप होता ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट मैं थोड़ा डिस्टिंक्शन करने के लिए उसको 2 स्टेप कर दिया यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं थोड़ा चाहता था कि डिस्टिंक्शन किया जाए, मींस कैटलिस्ट इज ड्राइविंग द रिएक्शन इन सम अल्टरनेट पाथ, तो अल्टरनेट पाथ को दिखाने के लिए मैं उसको कर दिया। ठीक है सर। अब देखो, आप टेम्परेचर बढ़ाने से भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड होता है, कैटलिस्ट देने से क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी थोड़ा लेफ्ट साइड में चला जाता है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? यस, ये कैटलिस्ट इफेक्ट है ना। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैटलिस्ट का इफेक्ट दिखा सकते हो। कैटलिस्ट में माने मोर मॉलिक्यूल्स कम्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी रेंज। आप अगर हॉर्डल्स का हाइट कम कर दोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल तो क्रॉस करेगा ही करेगा ना। वी आर नॉट एनर्जाइजिंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक अच्छा चीज ये है कि कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो पैरेलल हो सकता है, नहीं? इज नॉट इट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। मीन्स कैटलिस्ट, आप हायर टेम्परेचर में अगर कैटलिस्ट को ऑपरेट करोगे तो वहां पे भी टेम्परेचर इफेक्ट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है एंड कैटलिस्ट अलग तरह से काम करता है। मैंने मोडस ऑपरेंडी आप देख लो, अलग अलग है। कैटलिस्ट क्या करता है ना, हॉर्डल हाइट को कम कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, व्हेयरएज टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल को एनर्जाइज कर रहा है। तो दोनों एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, कुछ कैटलिस्ट ऐसा है जो कि टेम्परेचर चेंज करने से उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वहां पे कैटलिस्ट एकदम इफेक्टिवली काम करता है। उसके बाद क्या होता है ना, कैटलिस्ट का जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है। पर्टिकुलरली इसमें अगर आप एग्जांपल दोगे तो एंजाइम्स होता है। डू यू अंडरस्टैंड एंजाइम्स? तो एंजाइम जो कैटलिस्ट है, ये एंजाइम्स आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स।
ओके, सो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हुए चलोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोटीन का जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर ब्रेकअप हो जाता है, सो डीनेचर हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यस, Yes, sir. तो एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पे उसका एक्टिविटी हाईएस्ट होता है। बट केमिकल कैटलिस्ट, सपोज मेटल ऑक्साइड्स, मेटल्स, नॉर्मली टेम्परेचर के साथ उनका इतना इफेक्ट नहीं होता है। दैट डज नॉट मीन दैट यू गो टू वेरी हाई टेम्परेचर वेयर द metal lattice will break down. That is a different thing. But my point is that metal oxide जो chemical catalyst होता है, वहां पे temperature and catalyst का इफेक्ट जो होता है वो मोस्टली पैरेलल होता है। मीन्स एलिवेटेड टेम्परेचर में भी कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बट एंजाइम कैटलिसिस में आपका ये होता है। इसलिए मैं बोला इन जनरल अगर आप बोलना चाहोगे तो टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट का इफेक्ट जो होता है वो पैरेलल होता है। बट सम ऑफ द केसेस में अगर आपका कैटलिस्ट का स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकता है हायर टेम्परेचर में, देन यू हैव टू थिंक एट व्हिच टेम्परेचर इट्स एक्टिविटी इज ऑप्टिमाइज्ड। यस, अरे समझ में आया सर? एक बात तो सर, आप बोले थे कि कैटलिस्ट यूज करने से वो जो हर्डल का हाइट है वो घट जाता है सर, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का जरूरत क्यों है? मतलब पीक तब भी तो एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी रहना चाहिए ना ग्राफ का पीक। हाँ, ना, पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था इसका जो ये तो एनर्जी में लिया हो ना इस एक्सिस में। हाँ सर, पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गया ना अभी। ना सर समझाओ, मैं सोचा था वाई एक्सिस एनर्जी का है। ठीक है सर। नहीं वाई यहाँ पे एनर्जी ये है, बट यहाँ पे तो एनर्जी यहाँ पे ले आओ, एक्स एक्सिस में ले आओ। ठीक है सर। ओके, तो ये एक ओवरऑल आइडिया था आपका टेम्परेचर इफेक्ट का, बट ये अंडरस्टैंडिंग माइंड में पूरा डाल दो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। तो रॉन्ग आइडिया आपका माइंड में क्यों है मैं थोड़ा बोल देता हूँ, 1 मिनट। इसलिए है कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल हैज डिस्टर्ब योर माइंड। जो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड ली चैटलर्स प्रिंसिपल है ये आपका माइंड को डिस्टर्ब करके रखा है। सपोज रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो एंड रिवर्स इज एंडो। हम क्या करते हैं, सपोज टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हाट विल हैपन? इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होना चाहिए अगर एक्सो हुआ तो। देखो, ली चैटलर्स प्रिंसिपल सिंपली बोलता है कि इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू सम आउटसाइड स्ट्रेस, जैसे कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मींस हीट प्रोवाइड किया, because temperature gradient actually drives the heat flow. So when you provide heat, system will try to adjust itself internally so as to reduce the outside stress or so as to oppose or undo the outside stress. तो टेम्परेचर बढ़ा के जब आप हीट देते हो तो सिस्टम चाहेगा वो एक्स्ट्रा हीट को यूटिलाइज कर ले। ओके, तो नॉर्मली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जहां पे हीट यूटिलाइज हो रहा है, मींस इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम विल बी फेवर। तो हमारा समझ में ये यहां पे आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो तो सपोर्ट होता है, बट कहां पे मैं बोला कि एक्सो सपोर्ट नहीं होता है? कहां पे ये बोला गया कि एक्सो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट नहीं बढ़ रहा है? एक्चुअली बढ़ रहा है, दोनों का रेट बढ़ रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है, बैकवर्ड का भी बढ़ रहा है, बट बैकवर्ड का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। दैट इज व्हाई ओवरऑल इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, हाँ सर। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट में भी बढ़ोतरी हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट में भी इंक्रीज हो रहा है, बट दोनों इक्वल एक्सटेंट में नहीं होता है कभी। इसीलिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ना, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डू यू अंडरस्टैंड? तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। सपोज आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, बैकवर्ड का भी डबल हो जाता है 10 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या चेंज होता है?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर दोनों इक्वल एक्सटेंट को वेरी करता है तो के रिमेन्स कांस्टेंट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों का जो रेट में इंक्रीज हो रहा है वो दोनों इक्वल एक्सटेंट को नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो अलग अलग होता है कि नहीं? अब देखो, फॉरवर्ड में जितना एक्टिवेशन एनर्जी है, बैकवर्ड में क्या उतना ही है? नो सर, ज्यादा है। नहीं सर। तो टेम्परेचर जब इन्फ्लुएंस का हम बात करेंगे तो दोनों इक्वल रेट बढ़ाएगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों का रेट जो है इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, नहीं सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। इसलिए आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये कंफ्यूजन माइंड से आप हटा लो कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता है। ऐसा नहीं है, एंडोथर्मिक का बढ़ता है, एक्सोथर्मिक का बढ़ता है, बट एंडोथर्मिक का थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो कैन आई write a general conclusion? Increase in temperature increases SCS increases just a minute, क्या लिखा? Increase in temperature increases what? The rate sir in both exothermic and endothermic reactions. सही है? Increase in temperature increases the rate in both exothermic or endothermic reactions. Sir, you can add on also, irrespective of the fact that whether the reaction is exothermic or endothermic. Temperature बढ़ाने से rate बढ़ेगा. Am I correct? Okay. Yes, sir. The magnitude of effect is expressed as temperature coefficient. हम जब बोलते हैं ना टेम्परेचर कितना इफेक्ट करता है, थोड़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू क्वांटिफाई। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ता है, लेट अस ट्राई टू क्वांटिफाई। इफ यू वांट टू क्वांटिफाई means the magnitude of effect is expressed in terms of temperature coefficient, which is the ratio of rate constants differing by 10 degree. That means K T plus 10 by K. This is your temperature coefficient. Do you understand what I am saying? Yes? Suppose कोई टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया है, तो you can take room temperature, that is 298 plus 10, 308. Do you understand? Mostly हम लोग ये लेते हैं, room temperature plus room temperature plus 10. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. आप सेम रिएक्शन को 298 में करो, 308 में करो, 10 डिग्री डिफरेंस में, तो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एंड इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू lies between 2 to 3 for majority of the cases. Do you understand what does it mean? इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग? That means 10 degree rise in temperature increases the rate of reaction by 2-fold or even 3-fold. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. तो 10 डिग्री अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो इज नॉट इट वेरी सिग्निफिकेंट? यस Yes, sir. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट. तो ये वैल्यू देख के आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट कितना सिग्निफिकेंट है. तो
यहाँ पे आपको दो चीज एक्सप्लेन करना है। एक तो ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, थोड़ा बहुत मैं क्वालिटेटिवली इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, बट वी हैव टू गो फॉर क्वांटिटेटिव फिगर्स। तो वो बताएंगे आपको कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। इसको क्वांटिटेटिवली मैं एक रिलेशन निकाल लूंगा रेट एंड टेम्परेचर के बीच में, अनलेस अदरवाइज आई फाइंड ए रिलेशन बिटवीन रेट एंड टेम्परेचर। क्वांटिटेटिव कैसे करूं, तो उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज आपको एक्सप्लेन करना है। एक तो है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपको दो चीज के ऊपर हाईलाइट करना है। एक तो बढ़ता है, ठीक है, बट सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। वी हैव टू एक्सप्लेन दैट टेम्परेचर इफेक्ट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ए मेयर 10 डिग्री राइज कैन मेक द रिएक्शन रेट 2-fold और इवन 3-fold। So, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो टेम्परेचर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, कोलिजन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सो थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है सिग्निफिकेंट। सो थोड़ा स्लो हो गया, बट स्टिल देन इट्स ओके। In the next class, we'll go to the collision theory and we'll try to develop the mathematical expression between rate and the temperature. Okay? Yes? हाँ sir. So 64 students are here. ठीक. I will be sending you the attendance link बाद में, अभी तो time नहीं है मेरे पास. I'm a little bit busy today. Let us see. Thank you. We'll meet in the next class. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, I'm leaving.